with our today's class. So in today's class, I will let you know about the parallel lines and the rules of parallel and transversal, and I will share some questions with you. And this is a very, very important topic for you guys. So be careful. Okay. So I'm just moving with the topic now. So hold a second. Just hold a second, guys. Can you hear me? Yes, sir. Okay, okay. So just a moment. Just a moment. I'm taking one figure here. Okay. Guys, can you see a figure now? Anika and Yes, sir. okay. So you both can see a figure. So in this figure, अभी जो हमने लिखा हुआ है उस पे मत जाओ, ठीक है? जो लिखा हुआ है उस पे मत जाओ, जो यहाँ राइट हैंड साइड में दे रखा है आप उस पर आओ, ठीक है? सो कैन यू सी दिस लाइन एंड दिस लाइन? बहुत आराम से समझना, Yes, sir. कहीं कोई डाउट हो तो मुझसे तुरंत पूछना, ठीक है? सो यू कैन सी these two lines. These two lines are what? These two lines are parallel lines we have considered. What we have considered, Anika? We have considered that AM is parallel to ZE. इसको हम दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं, AM parallel to ZE. लिखने का ये सिंबल वाला तरीका होता है. Do you clear about this? Both of you clear about this? कैसे लिखते हैं parallel? Yes, sir. Clear. Anika, do you clear? Yes, sir. हाँ, देखो मैं बहुत स्लोली यहाँ मूव करूंगा, सो जरा भी डाउट हो तुरंत पूछना, ठीक है? ये नहीं कि छोड़ दिया और आगे बढ़ गया, नहीं. अच्छा, ये हमने अच्छा पैरेलल लाइन होता क्या है, पहले ये बताओ मुझे. अनिका आप बताओ पैरेलल लाइन क्या होता है? They are basically two lines which are running from an equal distance from each other. Lines never That never meet. meet. Lines That never never meet. each other. Means suppose that if I will draw a line here like this, can you see the line, guys? Yes, sir. And if I draw another line here like this, and I'm saying that both are parallel, That means so they're not meeting each other at any point. yes, they are not meeting at any point. And if I calculate this distance here, and if I calculate this distance here, so both the distance will be equal. Understand? मतलब अगर मैं बोलूं ये AB है और ये CD है, so AB will be equals to CD. मतलब ये जो distance है ये इसके equal होगा. तो जब distance equal होगा तो ये line कभी मिलेगी क्या हमारे पास? Will the line will meet each other? They will not meet each other, right? और सबसे best example क्या है इसका parallel lines का, मालूम है? Best What do you example, mean by best example? real life example कुछ पता है parallel Train lines? track. Train track, yes, train track is the real example. अनिका, ट्रेन की जो ट्रैक्स होती हैं वो क्या होती हैं? वो मीट नहीं करती, तभी तो ट्रेन चलती रहती है उस पर. मिट कर जाएंगे तो पहिए किधर जाएंगे? पहिए नहीं मिलेंगे ना, ट्रेन गिर जाएगी, राइट? चलो गुड. अच्छा, अब आते हैं ऊपर वापस. सो ये दोनों पैरेलल लाइन हो गई. और OH क्या हो गया अनिका यहाँ पे? OH. Sir, OH is the line which is intersecting both. Yes. So intersecting line is known as transversal. जो parallel lines को cut So I करेगा. have a question. Can we also call the transversal line the bisector? नहीं, bisector का मतलब होता है equal half. Are they cutting at equal half?
But these lines are not even meeting, so how can we say that? Wait. If I draw a line here, Yeah. if I draw a line here like, मेरा क्यों line एक बार में नहीं बनता? Just a second. Just a second, guys. Guys, can you see this line? Yes, sir. I have drawn right now. Okay. Hmm. This is cutting here. This is cutting here. Yeah. Right? So बाइसेक्टर का मतलब होता है कि ए बी लाइन को हाफ में डिवाइड कर दे और बीडी को भी हाफ में, तो बीडी को हाफ में डिवाइड कर रहा है क्या? नहीं सर. तो ये देखो बी के नजदीक है और ऊपर वाला पॉइंट सी के नजदीक है, so they are not looks like a bisector, right? But Yes. if I say this is L, this is M, so I can say here LM is a transversal. Okay, और देखो Anika, can you see this? Anika, they are cutting at where? They are cutting at the point P and the point Q. Can you see Yeah. that? Yeah. Okay, चलो इतनी चीज समझ आई कि अच्छा याद रखना एक चीज और बता दूं मैं. गाइस ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, ये एक लाइन मैंने ड्रॉ किया, कैन यू सी दैट? Yes, sir. और ये ये दूसरी लाइन क्यों नहीं ड्रॉ होती ऑलवेज? गिव मी अ सेकंड, मेरा पेन टूल जो है ना. ओके, दिस इज अनदर लाइन, कैन यू सी दैट? Yes, sir. अच्छा, ये मैंने एक लाइन है मेरी ए बी और इसको मैंने मान लिया एल एम. वुड यू कॉल इट एज ट्रांसवर्सल? Yes, sir. Anything No, that is not parallel lines. But these no are not parallel. transverse. We cannot call it transversal. No transverse. Why no transverse? Because no Because parallel line. it is, It's not intersecting parallel line. yes. So transverse तभी possible होगा जब हम एक और लाइन यहाँ ड्रॉ करें, then we can say yes, it is transverse. अब समझ आया कि कब ट्रांसवर्स बोलना है, कब ट्रांसवर्स नहीं बोलना है? Yes, sir. हाँ, अगर पैरेलल लाइन को अगर ये इंटरसेक्ट करेगा तभी हम इसको ट्रांसवर्स कहेंगे. अगर ये पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट नहीं करता है तो नो ट्रांसवर्स. क्लियर? अनिका, क्लियर विद यू? Yes, sir. ओके, चलो वापस आओ. चलो इतनी बातें क्लियर हो गई, चलो अच्छी बात है. अब मेरी बात ध्यान से सुनो. अब कुछ नहीं करना, अब आप एक काम करो. कैन यू कंसीडर AM and OH and can you okay, I will take the another pen here. I will take the green pen. Can you consider this point as a point P? Can you consider it? Yes, sir. At the point P, angle C will be equals to angle D. Anika, Yes, sir. angle C किसके equal होगा बताओ? Angle C will be equal to angle D. D. Okay. Why? Because Vertically opposite angle. opposite angle. Now, angle B will be equals to which one? Angle B is equal to angle F. Good. Point P पर, right? अच्छा, Yeah. अब point Q मान लेते हैं. This is the point Q. So आप बताओ point Q पे angle J will be equals to what? Angle K. Angle K. And angle G will be equals to what? Angle L. अच्छा, अब ये चारों किसके अगेंस्ट हो गए? वर्टिकली अपोजिट. किसके लिए हो गए? वर्टिकली अपोजिट. कोई प्रॉब्लम इसको समझने में? ये बताओ. No, sir. अच्छा, चलो ये हो गया. अच्छा, सना, कैन यू हियर मी? Yes, sir. अब ये बताओ, ये जो एंगल D है और एंगल G है, एंगल J है और एंगल F है, ये चारों एंगल पैरेलल लाइन के इनसाइड में है या आउटसाइड में है? मैंने जो नेम्स लिए हैं यहाँ पे D, G, J, F, what So are they? inside. They are
inside the pack. मतलब मुझे कभी भी समझ में नहीं आता वो इनसाइड है या आउटसाइड है. वेट, इनसाइड कहने का मतलब हो गया, देखो मैं सॉरी, ये मैंने यहाँ पे पैरेलल लाइंस बनाई है अनिका एंड सना. यस सर. तो ये एंगल यहाँ पर अंदर पैरेलल लाइन के अंदर ये है, राइट? तो लेफ्ट इज अंदर और राइट इज अंदर. वेट, अंदर देखो, इसको कहते हैं, ये मैंने क्या ड्रॉ किया, पैरेलल लाइन के ऊपर में ड्रॉ किया, राइट? हेलो Yes, सना, sir. सना कैन यू हियर मी? यस सर. ये मैंने क्या ड्रॉ किया, पैरेलल लाइन के ऊपर में ड्रॉ किया है ना. ये दोनों पैरेलल हो गए. अगर इसके बाहर में ड्रॉ किया तो दिस इज आउटसाइड, और कुछ भी चीज मैंने अंदर ड्रॉ किया मतलब यहाँ पे ड्रॉ हुआ इसके बीच में, तो ये क्या हो गया, दिस इज इनसाइड. अंडरस्टैंड? Yes, sir. सना आपकी Yes. आवाज ही नहीं आ रही मुझे. द काइंड ऑफ. अच्छा एक बात बताओ, ये बॉक्स देख रहे हो, ABCD बॉक्स मैंने बना दिया है. यस सर. इसके अंदर की चीज क्या होगी मुझे बताओ. इसके अंदर की चीज ये होगी ना, तो ये होगी ना अंदर की चीज, बताओ. यस सर. तो इसमें इनसाइड वाला समझने में क्या दिक्कत आ रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आया. अच्छा, जो पैरेलल लाइंस होती है और उसके बीच में से ट्रांसवर्सल जा रही होती है, तब उसमें साइड में ऐसे स्क्वायर बॉक्स थोड़ा बना होता है. अब देखो मैं बना रहा हूँ ना यहाँ पे, अगर आपके लिए मैं बना दे रहा हूँ ना, ये देखो, दिस एंगल्स आर व्हाट, दीज इंटीरियर. आर इंटीरियर, इनसाइड. आप बोल सकते हो ना इसको इनसाइड, या नहीं बोल सकते, बताओ. बोल सकते ये हैं सर. ये पैरेलल के इनसाइड है, और जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ऊपर में रेड कलर, दे आर व्हाट, आउटसाइड है पैरेलल, आउटसाइड. यस तो सर. दे आर एक्सटीरियर बोला जाएगा. कोई दिक्कत है इसमें? नो सर. अच्छा अब चलो, तो अंदर बाहर समझ में आया बात या नहीं आया? यस सर. ओके चलो, अनिका, डू यू क्लियर विद इनसाइड आउटसाइड? Sir, the inside is the ones here, right? Inside the figure, like yeah, Yes. the outside is the one parallel, like This, yeah, these are inside. they are inside, right? Yes. तो they are inside. अब एक बात बताओ, this angle and this angle, ये इस लाइन के, ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड है या अपोजिट साइड है? Opposite side. अपोजिट साइड है. सो इफ आई से हियर एंगल D, इसमें क्या नेमिंग दे रखा है, एंगल D और J में क्या रिलेशन है, आप बता सकते हो? Angle D and J together will make 180 degrees. G नहीं, J. J, sorry, I meant J. Angle D will be equals to angle J. Why? Alternate interior angle. Why? याद करना पड़ेगा. Alternate interior angle. Anika, Sana, can you hear me? यस सर. Okay, आप लोग म्यूट मत किया करो ना, म्यूट करने से क्या परेशानी है? पास है यहाँ पे, like हाँ? we have background noise. Okay. नहीं, आपके तरफ से है तो कोई इश्यू नहीं है, I can bear it. Okay, sir. हाँ, म्यूट मत करो. Okay. No need to mute it. Background noise है, I can bear. There is no problem. बहुत ज्यादा होगी तो मैं खुद बोलूंगा कि म्यूट कर लो. ठीक है? हाँ. अब यहाँ देखो, यहाँ पर एंगल D and एंगल J is what? Alternate interior angle. Why alternate? Because they are opposite to transversal. Can you see? Opposite direction. यस सर. And they are inside angle. They are inside interior angle. So याद रखना, उल्टे में opposite वाले alternate interior angle equal होते हैं. Is that clear with you? यस सर. तो F and G में क्या relation होगा? They will be equal and same alternate interior angle. Alternate interior angle. Do you clear, guys? Yes, sir. यस सर. अच्छा चलो, ये दोनों चीजें क्लियर हो गई. अब एक बात बताओ, ये दोनों सेम साइड हैं, सेम साइड एंगल्स. तो याद रखना, सेम साइड इंटीरियर विल मेक 180. Okay, तो sir. F प्लस J कर देंगे तो भी वो क्या देगा हमें? 180. 180 देगा. इज दैट क्लियर गाइस? यस सर. तो चलो अब एक काम करो आप लोग. Sir, does that mean that angle B plus angle K is equal to 180 degree? Yes, you are also right. We can make it.
अब कैसे मेक करेंगे बता रहा हूं मैं। आपने ये बहुत अच्छा चीज निकाला यहाँ पे कि एंगल बी, देखो मैं रूल्स ज्यादा नहीं पढ़ा रहा हूं, मैंने आपको सिर्फ ये 3 रूल्स पढ़ाए, एक वर्टिकल अपोजिट का, एक यहाँ पे एक्सटीरियर का, कैन यू सी, एंड एक यहाँ पे फिर आप लोगों ने म्यूच कर लिया, एंड यहाँ पे मैंने सम पढ़ाया है। 3 रूल्स आई टोल्ड यू। Yes, sir. अब इसके अलावा मैं कोई रूल नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन यस देयर आर मेनी मेनी रूल्स। कैसे? अभी आपने बोला एंगल बी एंड एंगल के मेक्स 180, यस यू आर राइट, इट विल मेक इट 180, ये रूल में है लिखा हुआ, बट मैं नहीं पढ़ाऊंगा। रीजन, ज्यादा रूल पढ़ाना खराब काम होता है, ठीक है। अब देखो कैसे सॉल्व कैसे करेंगे, मैं इसको बता देता हूं। B plus angle D will make how much? 180 Angle D, yeah, 180. because of a straight line. Yes, sir. Or angle G plus K makes how much? 180 again. 180 again. Yes, sir. Can we say that or not? We can. Okay. Next page में आ जाओ। एक सेकेंड मैं यहाँ लिखता हूँ। I told you here angle B plus angle D is equals to 180 and Sir, angle, can you repeat? My microphone got disconnected, so I couldn't hear you. देखो मैंने यहाँ 2 स्टेटमेंट लिखा, एंगल B plus angle D is 180. Can you see this? Angle B plus angle D. Yes, because of a straight line. Can you see the straight line? Yes. तो 180 बनाएगा ये। Yes, sir. और पॉइंट Q पे अगर आप देखोगे तो G plus K will make also 180. Yes, sir. ये 2 स्टेटमेंट मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत इसमें? No, sir. अच्छा चलो, So you're saying that G and K will also make 180. हाँ, G and K will Okay, also yeah, because okay, of a got straight it. line. Guess I समझ। अब इनका कहना है कि B और K क्या है, B or K will make 180 or not, so we will just check it right now. Okay, can you hear me? Yes, sir. So we are going to check it, so let's check it. So I have written here G and K. So should we draw the figure? No, wait, I will tell you. And I have already told you. Okay, so we have to see this. So here we can see now angle B plus angle G is equals to angle G plus angle K, right? Can you see that? Sir, I can't hear you. Yeah, okay. या एक काम करो, इतना कंफ्यूज मत हो, अभी इसको रहने दो। आप ना एक काम करो, आप पहले एक ये बना लो, मैं इसको क्वेश्चन में सारा एक्सप्लेन करूंगा। अभी आप एक काम करो, आप सिर्फ ये बनाओ, होल्ड अ सेकेंड। Anika and Sana, can you draw this part in your Figure? yes figure? Okay. And बस ये देखो, ये लाइंस दिख रही हैं आपको, नहीं दिख रही? Hmm. दिख रही है sir. So you need to draw like this: A, B, C, D, L, M. इसको जल्दी से ड्रॉ करो और स्टेटमेंट लिखना A, B is parallel to CD and LM is transverse. ये स्टेटमेंट लिखना। रूल्स में 1 by 1 रूल्स आपको बता रहा हूँ, Okay, sir. क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और जब तक समझ नहीं आएगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे। Sir, I'm done with this. Do we have to write it? Okay, son, yeah, AB is parallel to CD. AB is parallel to CD.
Okay. एंड दूसरा लिखो एल एम इज ट्रांसवर्स। ये दो स्टेटमेंट लिख दो। LM is transverse. एल एम इज ट्रांसवर्स। Okay, sir. सना डन? Sir, 2 minutes. ओके इज इट डन गाइस? Yes, sir. अच्छा अब चलो, shall I write सना? Yes, sir. ओके जैसा जैसा मैं लिखूंगा वैसे वैसे आप लिखोगे। इस फिगर में लिखोगे और फिगर के नीचे भी लिखोगे। इसको मान लो P और इस पॉइंट को मान लो Q। ओके इधर पे लिखो 1, इधर लिखो 2, इधर लिखो 3, इधर ऐसे बनाओ 4, यहाँ लिखो 5, यहाँ लिखो 6, यहाँ लिखो 7 और यहाँ लिखो 8। लिख लिया? Sir, 1 second. जैसे मैंने नंबरिंग की है वैसे ही करना, नंबरिंग में गड़बड़ मत करना, नहीं तो आप फिर गड़बड़ करोगे। Noted guys? Yes, sir. सनाजन Yes, sir. अब देखो, सबसे पहले हम रूल पढ़ेंगे वर्टिकल अपोजिट का। किसका रूल पढ़ेंगे हम? Vertical opposite. हाँ वर्टिकली अपोजिट। तो आप लिखो ऊपर में वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकली अपोजिट कौन कौन होंगे वो हम देखेंगे अभी। सो इफ यू सी द फिगर at point Q, angle 1 will be equals to angle 3। Yes, sir. तो उसको नोट डाउन करो, नोट डाउन करो कि वर्टिकली अपोजिट कौन कौन होंगे। तो एंगल 1 विल बी इक्वल्स टू एंगल 3, नोट डाउन कर लो। Yes, sir. उसके बाद दूसरा क्या हो जाएगा, एंगल 2 विल बी इक्वल्स टू एंगल 4, Yes, है ना? राइट। Yes, sir. तीसरा एट पॉइंट Q, एंगल 5 विल बी इक्वल्स टू एंगल 7, And angle 6 is equal to angle 8. एंगल 6 विल बी इक्वल्स टू एंगल 8। कोई प्रॉब्लम इसमें? No, sir. No, sir. नोट करो इस पॉइंट को जल्दी जल्दी। Done. डन हो गया? Yes, sir. अच्छा रुको, अच्छा एक मिनट, ये डन हो गया है गाइस यहाँ पे? Yes, sir. अच्छा अभी आप लोग लिखना नहीं, मैं यहाँ कुछ लिख के आपको बाद में समझाऊंगा। दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग एंगल 2 is equals to 4, एंगल 5 is equals to angle 7, 6 is 8। चलो ओके अब बताओ इंटीरियर, इंटीरियर एंगल्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे हम लोग? Interior angle. इंटीरियर एंगल्स में, इंटीरियर Sir, can एंगल। I you something? हाँ Sir, बोलिए। 3 and angle 8 will together make 180 degree. Right? यस यस, Okay, sir. इंटीरियर एंगल में ध्यान दो, एंगल 3 और एंगल 5 अल्टरनेट साइड में है या सेम साइड में है? Alternate. So they must be equal and the rule is alternate interior angle। Okay. अपोजिट साइड में है। यहाँ आप देखो सभी लोग कि ये 3 और ये 5 क्या है, दे आर इन अपोजिट साइड, राइट? सो दैट्स व्हाई अल्टरनेट साइड में है, दैट्स व्हाई दे आर कमिंग इक्वल। क्लियर गाइस? Yes, sir. सना आर यू क्लियर? Yes, sir.
and angle 2 and angle 8 is also alternate interior angle. They are in opposite direction. नोट डाउन कर लो जल्दी से. Yes, sir. अच्छा, दूसरी चीज, angle 3 and angle 8 are in same side of interior, so if I add them together, so they will make 180. So ये भी नोट करो. Same side interior, add them together 180. So angle 2 and angle 5 को भी add कर देंगे तो क्या बन जाएगा? 2 and 5, 180. 180 बन जाएगा. So, do we have to write angle 3 plus angle 8 under the interior angle, or is it a different point? No, interior angle के नीचे में ही लिखो. मेरे पास जगह नहीं थी, मैंने राइट में लिखा है, बट आप इसके यहाँ पे लिखो, ये 2 पॉइंट्स पे जल्दी से लिखो. So I have written this. I have written it. डन. Yes, sir. अच्छा, एक नया रूल और है जो कि मैं आपको बता दूं यहाँ पे. Shall I rub it this part? Yes, sir. Okay. Give me a second. One more rule we have, that is known as corresponding angles. I think आपने नाम सुना भी हो. Okay. That is known as what? Corresponding angles. I will just write down here. ये अच्छा रूल है जो कि जानना चाहिए. Corresponding angles क्या कहता है कि can you see this angle 1? Can you see this angle 1? Hello? Yes, sir. आप लोग म्यूट नहीं किया करो, कितनी बार मैं बोल रहा हूँ. Don't mute yourself. At the point P, you can see the angle 1. At the point Q, angle 1 की तरह कौन दिख रहा है? Sir, I didn't understand corresponding angles. मैंने बताया ही नहीं जो आपको समझ आएगा अभी. मैंने बता दिया क्या पूरा अभी? नहीं सर, पर आपने जो बताया मुझे नहीं समझ में आया. मैंने पूछा कि एंगल पॉइंट P पर एंगल 1 दिखाई दे रहा है. मैंने बस इतना ही तो पूछा अभी. क्या एंगल 1 आपको दिखाई दे रहा है पॉइंट P पर? Yes, sir. ओके, इतनी बात क्लियर है. पॉइंट Q पर एंगल 1 के जैसा कौन सा दिख रहा है यहाँ पे? जो जिस तरफ एंगल 1 है उसी साइड में देखो. 5. एंगल 5 दिख रहा है. अनिका, एंगल 1 की तरह कौन सा दिख रहा है यहाँ पे? एंगल 5. So corresponding angles में एंगल 1 and एंगल 5 will be equal. क्यों? corresponding मतलब एक जैसा. Do you understand? Corresponding means एक जैसा. So angle 4 will be equals to which one? Tell me. Angle 4 is equal to angle 8. Perfect. And angle 2 will be equals to which one? Angle 2 will be equal to angle 6. And angle 3 will be equals to which one? 7. Good. Do you understand, Sana? Yes, sir. These are corresponding angles. These are corresponding angles. तो corresponding मतलब एक जैसा. और ये याद रखना, ये always P and Q के बीच में होता है. P and Q के बीच में मतलब कि point P और point Q में relation जोड़ता है ये. Clear है? Yes, sir. So we put equals to sign, right? Between Yes, the equal. Yes, equal sign. मतलब एक जैसा दिखता है तो equal ही होगा ना. So angle 1 will be equals to angle Q. Right. नहीं पासवर्ड है. Small. या तो ये है या Yeah, do you understand, guys? Yes, sir. Okay, चलो. अगर इतनी सारी चीजें हो गई तब ये टॉपिक मतलब आपका एक्सरसाइज 7C हम आसानी से खत्म कर सकते हैं. ओके. So, but I don't understand what you told us last time. You had said discuss 2-3 questions about transposes. I didn't really get that fully. Like this. फिर से बोलिए, फिर से क्या बोल रहे हैं?
Sir, the thing you had told us last class about transversal, how to solve the question. हाँ मैं उस पे आ रहा हूँ, आई एम कमिंग. अभी तो मैंने सिर्फ टॉपिक पढ़ाया है, मैंने बोला कि इस पर हम एक्सरसाइज बना सकते हैं, राइट? सो आई एम कमिंग टू द क्वेश्चंस, डोंट वरी. अब देखो मैं एक बहुत सिंपल क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ गाइस, जरा आप लोग मेरी हेल्प करना यहाँ पे, ठीक है? Yes, sir. चले, रेडी हो? Yes, sir. चलो एक सेकेंड. तो मैं कुछ क्वेश्चंस लेने जा रहा हूँ, ठीक है? आप लोग मेरी हेल्प करना इसमें. टेकिंग द प्रॉब्लम गाइस, डोंट वरी. होल्ड अ सेकेंड. और आई थिंक ये सब आपने पहले भी किया होगा. पैरेलल लाइंस आपने शायद ग्रेड 6-7 में पढ़ा है, बट डोंट नो कितना किया कितना नहीं. जस्ट अ सेकेंड. Okay. चलो मैं क्वेश्चन ले रहा हूं यहाँ पे, ठीक है? ये लेना सही रहेगा. जस्ट अ मोमेंट. Okay guys, so I'm taking a problem here and I'm just giving you a thing that angle 2 is, oh sorry, क्या लिख दिया मैंने? Angle 2 is equals to 30 degree. What I told you? 30 degrees. Angle 2 is 30 degree. You have to find me 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. You need to find all the angles. Can you try? Yes, sir, I can try. Sana, can you hear me? Yes, sir. हाँ, पहले ये basic questions करो आप लोग. Basics are important for you. चलो आप लोग वर्कआउट करो और सब अपने अपने नोटबुक में लिखो. फिगर बना लो ऐसा. सब बिना फिगर के कर सकते हैं कि फिगर बनाना कंपलसरी है? फिगर बना लो तो अच्छा रहेगा. Okay, sir. First I'm solving it, then I'll make the figure. Otherwise, it takes a lot of time. Okay. Done, guys? So Found just out two angles. sir, Huh? I've got angle 1, which is 150, and I have almost got angle 3. Okay, Sir, wait. Yes, sir. Yeah, Anika, tell me. angle 3 is also 150 because they are vertically opposite. Good. Now Yes. देखो, अब देखो मैं Yeah. करता हूँ, मैं solve करता हूँ. It is also 150 because they are corresponding angles. Wait. Angle 1 plus angle 2 makes 180. We know that because of a straight line. आप लोग म्यूट नहीं किया करो. Yes, sir. Because of a straight line, Yes, right? sir, I did that. Yeah. तो यहाँ पर एंगल 2 जो है वो 30 डिग्री है, तो एंगल 1 कितना बनाएगा? 150. 150. चलो मैं यहाँ फिल करता जा रहा हूँ, And ध्यान से angle 1 and 3 will be same. एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के क्या है?
Angle 1 is Vertical opposite. वर्टिकल अपोजिट, तो ये भी कितना हो जाएगा? 150. आप लोग रूल्स के साथ चलना, रूल्स में कहता है वर्टिकली अपोजिट, रूल्स लिखता जाना साथ में ही, नहीं तो आप लोग सॉल्व नहीं कर पाओगे। एंगल 2 विल बी इक्वल्स टू एंगल 4, व्हाई? Vertical opposite again. वर्टिकल अपोजिट, तो एंगल 4 कितना हो जाएगा यहाँ हमारे पास? 30. 30. No, sorry. 30 डिग्री, राइट? अच्छा, अब मुझे क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए? फिफ्थ नंबर, राइट? So So, 4 plus 5. वेट, क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 5 बाय करस्पॉन्डिंग एंगल्स? Yeah, we can say that also. So 5 is equals to how much? 150. अब देखो यहाँ बहुत सारे रूल्स बनेंगे, अब आप ये भी बोल सकते हो कि 2 6 भी करस्पॉन्डिंग हो गया सर, 2 6 भी करस्पॉन्डिंग हो जाएगा ना? Yes, sir. So 2 and 6 will be corresponding, so this will be 30, and 3 and 7 will be corresponding, so this will be how much? 150, 150 and 30. 8 will be how much? 30. अब यहाँ दूसरा रूल ये भी बोल सकते थे आप कि सर जब हमने यहाँ पर 5 को 150 मान लिया, so this will make 180, so 6 will become 30. Yes, sir. And that 5 is and all 6, right. 5 and 7 you can also say opposite angles. Yes, we can. आप do ये भी that. रूल, आप ये भी रूल बोल सकते थे। अच्छा, एक रूल यहाँ ये था कि जो सना बोल रही थी, मैंने उनको क्रॉस कर दिया। सना ने बोला 4 and 5 will make 180, राइट? Yeah. तो 4 and 5 will make 180, तो 4 का एंगल निकला था 30, तो 5 ऑटोमेटिकली देख लो 150 आ जाता, बट मैंने वो सना को रोक दिया। क्यों? क्योंकि मुझे ये इजी लग रहा था। कैन यू सी, हमारे पास रूल्स बहुत सारे हैं। अब देखो 4 and 6 can be alternate interior angle, that is also possible or not? Tell guys, 4 and 6, look here, 4 and 6 are coming same, Yes, sir. so it's depend upon you, आप क्या लेते हो। Do you clear guys? So we can also Yes, write sir. angle 8 is equal to 180 minus angle 5 when angle 5. हाँ, yes, you can do that. आप इसको भी 180 टोटल देखो, 180 बनाएगा, तो आप एंगल 5 प्लस एंगल 8 इज इक्वल्स टू 180 लिख सकते हो। तो एंगल 5 मान लो 150 डिग्री है, तो निकाल लो ना, देखो कितना आ रहा है, बताओ। एंगल 8 कितना आया बताओ? 30 डिग्री आया, हमने भी 30 डिग्री लिख रखा है, बताओ। Yes, sir. हाँ, तो रूल्स बहुत सारे हैं गाइज। सो ये डिपेंड, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको टेक्निकली समझाया है कि आप रूल्स खुद से कैसे बना सको। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? No, sir. चलो एक क्वेश्चन और करते हैं गाइस, तो इसको जल्दी से नोट कर लो। So कर लिया? ओके, चलो अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है ये वाला, आई एम अपलोडिंग। इसको मैं करूंगा, आप लोग ध्यान से सुनोगे, ठीक है? कैन यू सी द फिगर हियर गाइस? Yes, sir. इस फिगर में ध्यान से देखो तो हमारा ये वाला जो है, this line and this line is parallel, right? And this line is going transversal. Can you see that? Yes, sir. Yes, sir. हमें क्या निकालना है यहाँ पे बताओ? हमें x की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? X की value. x की वैल्यू निकालनी है। कोई प्रॉब्लम इसमें? No, sir. अब देखो ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा मुझे बताओ। मैं यहाँ नेम दे देता हूँ एंगल A. Angle A will be equals to the opposite angle. Can you see that? Yes, sir. Sana, tell me. Sana, angle A will be equals to the opposite to the 9x plus 12 Yes. or not? Yes, sir. And angle A and angle 3x will make 180 or not? Tell me. Yes, sir. तो अगर मैं यहाँ देखो, मुझे मालूम है कि एंगल A plus 3x will make 180 डिग्री, और एंगल A किसकी, यहाँ ध्यान दो गाइज, कहीं और नहीं। एंगल A जो है वो 9x plus 12 है। सो कैन वी फाइंड द x वैल्यू फ्रॉम हियर गाइज? Yes, sir. सो यहाँ से कितना हो जाएगा ये? 12x plus 12 is equals to 180. So 12x is equals to 180 minus 12. So 12x, 180 minus 12 will be how much? 68. Huh? 68. 168.
So 180 minus 12 is 168. So x is equals to 168 by 12. So divide it. 14. So it will give me 14. So x value is coming how much? 14. अब देखो मुझे y निकालना है. Are you getting some relationship here, guys? Yes. What So relationship, Sana? Tell me. they'll together from 180. 4 by minus 10 is equal to 180. So we have to replace x with the value we found. Good, good. So, Not 12. huh? 14. 36 4y minus 10 equals to 180. So ये हो जाएगा 4y, ये 26. So 180 minus 26. So, but x is equal to 14, not 12. Ah, sorry. Yeah. 14. तो ये हो जाएगा वैल्यू, एक मिनट मैं रब कर देता हूँ. और होती है 42. ओके सॉरी. सो 42 32 हो जाएगा, 32 इधर आ जाएगा 32. So 180 minus 32. Yes. 148. So 4y is equals to 148. So y will be 148 by 4 will how much? 4 3s are 12, 4 8s are 37. 27. Oh, 30. Sana, do you understand how to do this? I got it. अच्छा चलो अभी हम Figure of the last question. I didn't see it. I didn't draw the figure of the last question. एक सेकेंड. आपने ये क्या भेजा है सना मेरे को? ये नहीं ओपन हो रहा. वेब लॉक नहीं ओपन हो रहा सर. नहीं, ये ओपन वेब लॉक ओपन नहीं हो रहा. Okay, I will send the other way. आप पीडीएफ करके भेजो तो आएगा. ठीक है. सर बस पीडीएफ में ही है, पर मैंने वेब से कॉपी करा तो मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा. ओके. ओके चलो मैं क्वेश्चन और ले रहा हूँ. सना, आर यू रेडी फॉर द क्वेश्चन? अनिका, रेडी फॉर द क्वेश्चन? सर डिड यू गेट इट नाउ? नहीं, कुछ आया तो है. यस, आई थिंक नाउ आई कैन ओपन इट. गिव मी अ सेकंड. यस, आई गॉट इट. अच्छा, ये होमवर्क दे दिया अब उन्होंने वापस से. पता नहीं सर किससे रिलेटेड है, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा. इसी से सेम चीज से रिलेटेड. लास्ट टाइम मैं होमवर्क करना भूल गई थी, सर ने बहुत डांटा था क्या करती नहीं होमवर्क. तो कल तो उसने मैंने बताया था आपको. सब वो उसके पहले वाला था. ओके चलो मैं अभी आपको ये कब सबमिट करना है? I have to submit it tomorrow. चलो टुमारो ना, मैं आज Tomorrow evening. I have to submit. मैं ये इवनिंग में बताऊंगा, क्योंकि अगर मैंने अभी ये चीज बताई ना आप So is लोग. it related to what we are doing? यस इट्स रिलेटेड. लेकिन मैंने अगर अभी जस्ट बताया ना तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, आप लोग बिल्कुल Yes कंफ्यूज हो sir, okay, no problem. तो इसको बताने से पहले मुझे कुछ बेसिक चीजें आपको बता देनी पड़ेंगी ताकि आप ये सारी क्वेश्चंस कर पाओ. ठीक है, इन्होंने बेसिक बताया नहीं है और डायरेक्टली इसमें जंप करा रहे हैं. दैट्स व्हाई यू आर फेसिंग द इशू. ठीक है, सो आपको थोड़ा सा बेसिक बताना पड़ेगा मुझे, देन यू कैन प्रोसीड. इज इट क्लियर? Okay, sir. ओके अनिका, आर यू क्लियर विद दिस क्वेश्चन? Yes, I'm clear. इस क्वेश्चन में हमने क्या रिलेशन, देखो हमें एक्स वाई निकालना था तो हमने We subtracted to find x. What we did was we subtracted the 180 से हमने 9x plus 12 subtract करा. नहीं देखो हमें चाहिए था x. क्या चाहिए था हमें? X. Find the. अब देखो x यहाँ पे था और मुझे इसके साथ 180 का रिलेशन बन रहा था, लेकिन मुझे a पता नहीं था, तो मैंने देखा कि a इज अपोजिट टू दिस, राइट? तो मैंने a की जगह पे ये लिख दिया. कोई दिक्कत? Yes, sir. और मुझे मालूम है कि a और 3x will make what? They are interior same side. Can you see that? Yes, sir. इंटीरियर सेम साइड में 180 बनता है, मुझे पता था, तो मैंने ये लिख दिया, तो यहाँ से मुझे x मिल गया. Yes, sir. अब ये देखो मुझे x और y में ये यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बना रहा है. कैन यू सी? तो इसलिए मैं स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखा तो ये भी 180 दे देगा मुझको. Yes, sir. So that's why I got this relationship. Do you understand now? Sir, but can we also do it the other way where we do
नहीं, इसमें अदर वे नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें यही रूल लगेगा। ओके सर। क्योंकि सारे हर आप कर सकते हो, अगर पॉसिबिलिटीज हैं तो कर सकते हो, बट इस क्वेश्चन में पॉसिबिलिटीज नहीं है। क्लियर है? यस सर। ओके, चलो मैं दूसरे क्वेश्चंस ले रहा हूं बेसिक, जरा आप लोग मेरे साथ ध्यान से वर्कआउट करना। कैन यू रीड दिस? पहले क्वेश्चन को 1 नंबर पार्ट जो इसमें है उसको अच्छे से पढ़ो। Okay, sir. In each of the following figures, AB is parallel to CD. Find the value of X in each case. फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच Each केस। case. अच्छी बात है, ठीक है। अनिका, आपने भी क्वेश्चन पढ़ लिया? यस सर। कोई दिक्कत क्वेश्चन पढ़ने में? नो सर। चलो, अच्छी बात है। मैं इस फिगर 1 को मैं वापस से कॉपी डाउन कर रहा हूं। इसमें क्या इंफॉर्मेशन दी है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, यही इंफॉर्मेशन है ना? यस सर। अब चलो, मैं इस फिगर को यहां ले रहा हूं और थोड़ा मैं इनलार्ज कर रहा हूं आपके लिए, ताकि इनलार्ज होने पे आपको समझ आए चीजें। Should we draw the figure first? नहीं, रुक जाओ। अब देखो, इस तरह के फिगर में 2 पैरेलल लाइंस हमको इन्होंने दे दी, ए बी एंड PD. सी डी आर द पैरेलल लाइन। एक पॉइंट देखो, यहां पर एक ई पॉइंट बन रहा है कुछ यहाँ पे, कैन यू सी दैट? Yes sir. It's a और ED. कोई रिलेशनशिप मिल नहीं रहा। हम क्या करेंगे इस केस में? वी विल ड्रॉ अ पैरेलल लाइन at the point E from our side. What we Okay. will do that? We will draw a parallel line From point E. from point E, parallel to which? Parallel to? AB and CD. Right. So can you see that? Yes sir. Can you see in this figure, guys? Yes, sir. अच्छा, अब बात आती है कि क्या इसने x को इक्वली डिवाइड कर दिया? तो नहीं, इसने x को इक्वली डिवाइड नहीं किया। ऐसा मैंने कहीं स्टेटमेंट बोला ही नहीं है। तो x को किस में डिवाइड किया? सो लेट्स सी हियर गाइस। मैंने कहा कि इक्वल डिवाइड नहीं किया, तो इसको मान लो नेमिंग, क्या नाम देना चाहते हो? मैं इसको नाम देता हूं सना का, S, और इसको नाम दे दिया स्मॉल a। कोई प्रॉब्लम है क्या? No, sir. सना एंड अनिका नेम दे दिया कि x जो है वो किस पार्ट में मेरा डिवाइड हो गया? सना और अनिका के पार्ट में डिवाइड हो गया। s एंड स्मॉल a के नाम से मैंने डिवाइड कर दिया। तो क्या मैं यहाँ बोल सकता हूँ, कैन आई से इट हियर दैट एंगल x इज नथिंग बट एंगल s प्लस एंगल a? Yes, sir. You can see that. अनिका, लिसन मी, कैन वी से दैट और नॉट? टेल मी। Yes sir, we can. अब मुझे अगर x निकालना है तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा? सना और अनिका का एंगल निकालना पड़ेगा, राइट? Yes, sir. अच्छा, अब चलो, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। Sir, so they're interior angles. So they're. वेट, ये लाइन पैरेलल है। Yes sir. तो ये वाला 104 और सना वाले एंगल में कुछ रिलेशन बन रहा है? Yes sir. क्या बन रहा है? सना बताओ, क्या बन रहा है रिलेशन? Relation between S and A. यस, नहीं, S एंड 104। Sir, I think they are same side. सेम साइड एंड Interior. इंटीरियर एंगल। Interior angles, yeah. So can I say here angle S plus 104 will make 180 degree? Yes, sir. We can say that. तो एंगल S की वैल्यू क्या होगी बताओ जल्दी से? 100. 180 minus 1. 96. I mean, Yes. It will give me 76. 76। चलो S की वैल्यू निकल गई। अब ये बताओ कि ये लाइन CD is parallel to red one, right? The same thing again. तो एंगल A एंड एंगल 116 में कोई रिलेशनशिप है क्या? Angle A plus 100. Yes, sir. Angle A plus 160. 180. So angle A is how much now? 60 plus 4, 64. So 180 minus 116 will give me 64, right guys? Yes sir. So angle X will become here, angle S is 76 plus 64. Can you tell me the answer now? It is 140 if I'm not wrong. So it is 140 degree. So this whole value
This whole value is the x, and x is how much? 140. So if anybody asks me what is this angle, Angle x is 140. कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? No, sir. जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और ये करने का तरीका समझ आया? Yes, sir. तो बेसिक क्लियर होने से ये सारा फायदा होता है, ठीक है? अब अनिका आपको समझ आ रहा है कैसे क्वेश्चंस करते हैं हम? Yes, sir. अच्छा, आप लोग के पास थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा है अभी, है ना? Sir, I have a class at 1. Even I have a class at 1. तो 1 में कहीं बाहर जाना है या घर में ही है, ये बताओ। It's an online class. Yes, तो sir. हम Same. 45 तक एक्सटेंड कर सकते हैं अपनी क्लास? Okay, sir. कर सकते हैं, नहीं बताओ सना? Yes, sir. I don't have a problem. ठीक है, चलो आज मैं डेली नहीं करूंगा, डोंट वरी, ओनली फॉर टुडे, क्योंकि थोड़ा सा इसमें मुझे बताना है, तब आप एक्सरसाइज कर पाओगे ना, ठीक है? जल्दी से नोट करो इसको, क्योंकि मैं थोड़ा स्लो मूव कर रहा हूँ, सो थोड़ा सा मुझे एक्सटेंड करना पड़ेगा यहाँ आज। नोट हो गया? So, what is the first thing we have to note? I have drawn the figure, but like, what is the first thing we have to write in this? आपने फिगर में ये रेड वाला भी बनाया है, Yes, sir. तो आप लिखो ड्रॉ EF as a parallel to AB and CD. Okay. Draw EF parallel to AB parallel to CD, ऐसे लिखते हैं, लिखो। लिख लिया? Just a minute. उसके बाद लिखना therefore angle S plus angle 104 is equals to 76. अच्छा, फिगर जब बनाओगे ना, तो फिगर में S और A डिनोट कर देना, जैसे मैंने डिनोट किया था। So, angle S plus ये वाला, angle ये स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट, 104 is equal to 180 degree. यस। Angle S is equal to Done. और नीचे में ये वाला फिर नोट करो, Draw EF. ये क्या लिखा है आपने? EF is parallel to AB and CD, मतलब ये So जो रेड, draw क्यों लिखा है उसके क्योंकि ऊपर? आपने EF ड्रॉ किया है ना, EF दिया हुआ तो नहीं था। Okay. डन गाइस? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No. अनिका डन? अच्छा, एक काम करो ना, मैं तो ये सब PDF दे दूंगा, सब बाद में नोट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। I'm done. मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन बनाने दो यहाँ पे। देखो इसको देखो, कैन यू सी दैट सेकंड फिगर? Yes, sir. सना, कैन यू सी द सेकंड फिगर? Yes, sir. अब देखो इस फिगर में क्या करेंगे, यहाँ पे O पॉइंट दिख रहा है आपको? Yes, पॉइंट sir. हम It's a reflex angle. कुछ नहीं, देखो कुछ नहीं, पॉइंट O पर भी आपने एक लाइन ऐसे पैरेलल ड्रॉ कर देना है। क्या करना है? Yes, sir. Parallel draw करना है. पैरेलल ड्रॉ कर देना है, और उसके बाद बताता हूँ क्या करना है। गिव मी अ सेकंड। कैन यू सी द पैरेलल लाइन? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। कैन वी कंसिडर दिस एंगल इज P एंड कैन वी कंसिडर दिस एंगल इज Q? बताओ। Yes, sir, we can. अनिका, सना, can we make it angle P and PQ here? Yes, sir. We can. अच्छा, अब ये बताओ एंगल P किसके इक्वल है, बताओ मुझे जल्दी से। Angle P is equal to 140. 140 क्यों? 140 क्यों? No, not 140. I meant 180 minus 40 is equal to angle. 180 माइनस 40 करने की क्या जरूरत है? एंगल P और एंगल 40 इक्वल नहीं होंगे, बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। नहीं दिख रहा है यहाँ पे, उल्टे साइड में है। कैन यू सी दैट गाइस? Yes, sir. सना, कैन यू सी दैट? Yes, sir.
अच्छा, और नीचे देखो, नीचे CD और EF पैरेलल लाइन है, तो एंगल Q किसके इक्वल हो जाएगा बताओ? Angle Q will be equal to. ये अपोजिट दिख रहा है? Angle Q will be equal to 35. एंगल Q is equal to 35 because of alternate. So angle O will be able to. Wait, alternate इंटीरियर एंगल। कोई दिक्कत यहाँ पे? Yes, sir. अच्छा, हमें एंगल O नहीं, एंगल X निकालना है। क्या निकालना है हमें? एंगल X, ये कंप्लीट X। तो एक बात बताओ, ये P प्लस Q अगर आपको मिल गया है तो P प्लस Q कितना हो जाएगा गाइस? 75। और एक पूरा सर्कल 360 देता है। Yes, sir. So can I write angle X plus P plus Q makes 360? Can I say that or not? Yes, sir, you can. X plus 75 is equals to 360. Can I write that? So angle X is equals to how much? 360 minus 75. Just do it. एक तो ये तरीका था सॉल्व करने का, समझे? Yes, sir. जल्दी, ये समझ आया नहीं आया बताओ? Anika, tell me. So can we name the angle 40 as something so that we can write Yes, like. yes, you can name it as angle ABO, and yeah, this is 40 degree, and CDO, that is equals to 35 degree. अच्छा, ये नेमिंग सब बाद में करना, पहले ये तरीका समझ आया? Yes, sir. एक तरीका इसमें और है, मैं इसको रब कर रहा हूं और ध्यान से सुनना। मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, क्या ड्रॉ कर दी? पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी EF। कोई दिक्कत यहाँ पे? No, sir. Can I say this is angle A and can I say this is angle B? Can I say that? Yes, sir, you can. अब एंगल A और एंगल 40 में कोई रिलेशन है क्या? Angle A and angle 40 will make up 180 degree. तो यहाँ से एंगल A क्या निकल जाएगा? Angle A is equal to 140 degree. एंगल B और 35 में कोई रिलेशन है क्या सना? Well, B and 30 No, what? B and 35. makes one. Where, yes, sir, side. they make 180. Yeah. So this becomes 145. तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? x is equals to angle A plus angle B. So this gives me 285. चेक कर लो, is also coming 285 from here. क्लियर है? yes, sir. सना क्लियर है? Yes, sir. So can you just give a second to note this down? नहीं, आप नोट बाद में करना यार, जल्दी कर लो, जल्दी से। और गाइज आप लोग, मैं वीडियो कल तक अपलोड कर दूंगा सभी की, आप लोग प्लीज वीडियो से रिवाइज जरूर करना। रिवाइज नहीं करोगे नहीं समझ आएगा, मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ, ठीक है? Yes, sir. हाँ, इसमें रिवीजन बहुत जरूरी है, तो रिवीजन नहीं करोगे सारा जितना पढ़ाया लिखाया सब जीरो हो जाएगा, समझे? So done. सना, अनिका डन? Just a minute, sir. तो इस तरह से दिमाग में सोचना है, रूल्स जल्दी नोट करो। एक क्वेश्चन और मुझे बताना है। Sir, I'm done. ओके एंड ओके, एक सेकेंड। अनिका, ये जो आपने भेजा है विद द हेल्प ऑफ कैम स्कैनर, तो ये शायद आपने परचेज कर रखा है क्या कैम स्कैनर? Nice, sir. All you have to do is go to the link, and then in the WhatsApp message, I've also sent you a password. हाँ नहीं, वो तो आ गया,
If you can give me your email ID, I can send it to you through that. Otherwise, it does this weird thing. नहीं, फिर ये सना कैसे भेजते हैं? सना का तो नॉर्मली पीडीएफ आ जाता है। Sir, I don't सब know. वहाँ पे ऊपर पीडीएफ का ऑप्शन होता है, उस पे प्रेस करना होता है, वो जनरली चला जाता है। हाँ वो Done that. नहीं, आपने शायद लिंक के थ्रू भेज दिया होगा। एक ऑप्शन आता है पीडीएफ के थ्रू भेज देने का, ठीक है? पहले वो साथ में कंबाइन कर देता है, पर तब वो पीडीएफ नहीं बनाता। देन आफ्टर दैट देयर इज अ टॉप राइट ऑप्शन वेयर पीडीएफ ऑन अ पेपर पीडीएफ इज रिटन। चलो कोई नहीं, लेकिन आई थिंक ये कैम स्कैनर सना बैन हो चुका है शायद, तो ये बाद अच्छा, में वो बैन नहीं हुआ कैम स्कैनर, लेकिन कम यूज हो गया है, पर मैं स्कैनेबल यूज करती हूँ। अच्छा, तो सना आप अनिका को भी बता देना जो आप यूज करते हो। उसको तो परचेज वगैरह कुछ करना नहीं है ना, मतलब? नहीं सर। हाँ, तो आप प्लीज सना को बता देना कि क्या यूज करते हो, कैसे यूज करते हो। तो आप अनिका आप भी सेम वैसे ही यूज करना। सना यूज करती है, उनका सही है भेजने का तरीका, ठीक है? हेलो। Yes, sir. हाँ, आप सना से एक बार पूछ लेना कि कैसे करते हैं, ठीक है? वो ज्यादा बेटर है इनका। Okay, क्लियर? sir. हाँ, ओके। चलो एक क्वेश्चन और है गाइस, मैं देखने जा रहा हूँ अभी। सो लेट्स सी विद मी। सो आई एम जस्ट अपलोडिंग। या हाँ, ये क्या हो गया? एक सेकेंड। Okay guys, can you see the question guys here? यस सर। इसको अच्छे से रीड करो। अनिका प्लीज रीड इट। In the given figure, AB is parallel to CD. Find the value of X. हमें क्या निकालना है यहाँ पे? X. So I think X will be equal to 100 because of alternate interior angles. You are wrong. पहले ही सोच लेते हैं सब कुछ, मतलब अंतर्यामी हो गया ना। हाँ, आंख बंद किया आंसर आ जाएगा। So X plus 50 is equal to 180 can also be one way. रुको, सॉल्व करने दो, अंतर्यामी नहीं हो गए अभी। गाइस एक लाइन ड्रॉ करो पैरेलल टू CD एंड AB। क्या करेंगे हम इसमें? देखो जहां नहीं दिया हुआ है, मैं क्यों ड्रॉ करता हूं, मैं रीजन बताता हूं अभी। शायद आप लोग को नहीं पता चला है अभी तक रीजन, तो मैं बता देता हूं। अनिका एंड सना बोथ कैन यू सी हियर, ये वाला, अच्छा मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ। गाइस जरा मेरा पॉइंटर यूज करना। ये दोनों कहता है जी पैरेलल है। क्या कहता है? पैरेलल है। आप लोग सुन रहे हो? गायब हो गए? Yes, sir. I'm here. या सो दीज टू लाइंस आर पैरेलल। लेकिन क्या इन दोनों के बीच में कोई ट्रांसवर्सल ड्रॉ किया क्या इसने क्वेश्चन में? इन Sir, दोनों I के that line AE is transversal. line A is transversal to whom? To E. To E। अगर मैं यहाँ नेमिंग कर दूं, नेमिंग में मैं यहाँ पे नेम दे देता हूं, गिव मी सेकंड गाइस। अगर मैं यहाँ नेमिंग कर दूं MN, तब आप बोल सकते हो ना कि A is transversal to whom? This and this. Am I right? And EC is transversal to whom? MN and CD. Can you see that guys? Yes, sir. लेकिन मैं क्यों ड्रॉ कर रहा था, रीजन बता रहा हूं। इन दोनों के बीच CD और AB के बीच में कोई ट्रांसवर्सल था क्या? नहीं था, तो हम सॉल्व। अनिका, सना कैन यू हियर मी? सना, Yes. तो मुझे क्या करना पड़ा यहाँ पे? ये लाइन देखो, ये यहाँ जा रही है, ये यहाँ जा रही है, तो मुझे एक यहाँ पे पैरेलल ड्रॉ करना पड़ जाता है। इस पैरेलल को ड्रॉ करने से फायदा ये होता है कि दिस बिकम्स अ ट्रांसवर्सल। This becomes what? A transversal. EC becomes a transversal for these two parallel lines. Clear है अभी? जल्दी बताओ, क्लियर है अभी? Yes sir. अब देखो इसमें कैसे सॉल्व करेंगे गाइस। AE is transversal. A is transversal for MN and parallel to AB. तो अब गाइस 50 के इक्विवेलेंट कौन एंगल होगा, मुझे बताओ। अनिका कैन यू टेल मी? मुझे ढंग से समझ में नहीं आया। MEA is equal to 50. ये आपको रेड लाइन और AB लाइन पैरेलल दिख रहा है सना? Yes sir. इसमें ट्रांसवर्सल कौन है बताओ? AE. A इज ट्रांसवर्सल है,
और Yeah. रेड कलर और CD पैरेलल दिख रहा है आपको? Yes, sir. इसमें ट्रांसवर्सल कौन होगा? EC. बस इतनी सी बात है। अब क्लियर है? Yes, sir. अब मैंने कहा ये कि AE ट्रांसवर्सल है MN एंड AB के, राइट? और मेरे पास एंगल 50 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है मेरे पास? एंगल Angle 50। 50. तो एंगल 50 किसके इक्वल होगा? फिगर देखो तो ये मैंने एंगल 50 जो है, एंगल 50 जो है वो एंगल MEA के इक्वल होगा या नहीं होगा? Yes, sir. Which I have drawn with the yellow color. Can you see that? Yes, sir. Got it. And एंगल 100 जो है उसका इसके साथ क्या रिलेशनशिप है ये बताओ मुझे. What is the relationship between angle NEC and 100? Tell me. Green और 100 के बीच में क्या रिलेशनशिप है? Together will make 180 degree. Am I right? अनिका, सना? Sir. तो ये कितना हो जाएगा? This will become 80 degree. कोई प्रॉब्लम? No, sir. तो अब ये बन गया जी हमारा 50 और ये बन गया जी 80. Total makes how much now? 180. So can I say Oh. here 50 plus X plus 8 Got it, sir. makes 180 degree? Yes, sir. This is a tricky question. So this is how much? 180 minus 130. So X will become how much? 50 degree. Got it, sir. Anika, do you understand? Yes, sir. जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करो, फटाफट, टाइम नहीं लगना चाहिए. एक क्वेश्चन और है मेरे पास, जल्दी से नोट करो गाइस. वी विल कंप्लीट वन मोर क्वेश्चन. अच्छा, आप लोग बाद में भी नोट कर सकते हो. समझ में आया कि नहीं आया, कैसे करना है? हेलो? Yes, sir. I understand. हाँ, समझ आ गया ना कैसे करते हैं? सना आपको? Yes, sir. चलो, एक क्वेश्चन और है, बहुत इंपॉर्टेंट गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो आई एम जस्ट शोइंग यू. कैन यू सी द फिगर गाइस? Yes, sir. अब एक बात बताओ, यहाँ पर मुझे कोई पैरेलल लाइन ड्रॉ करने की जरूरत है क्या? नहीं, sir. क्यों जरूरत नहीं है? बताओ क्यों नहीं जरूरत है? There is already a line connecting. लेकिन ट्रांसवर्सल के साथ कोई पैरेलल लाइन तो होना चाहिए ना. Yes, sir. तो ट्रांसवर्सल कौन है यहाँ? देखकर बताओ जल्दी से आप लोग, कौन है ट्रांसवर्सल? यहाँ पे transversal. AE and CE are the transversal. But yeah, they are. They are the transversal, right? Yeah, got it. तो मुझे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा. कहाँ पे? E से E ऊपर. पर ऊपर की साइड पैरेलल टू AB and CD. So guys, can you see the parallel line? Yes, sir. Anika, can you see the parallel line? Anika? I can. Okay. So मैंने पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया गाइस. अब एक चीज मुझे देख के बताओ, Yes. अगर मैं इसकी और इसकी बात करता हूँ, येलो डर्टी फेलो, ठीक है, येलो डर्टी फेलो की बात करता हूँ, तो 105 and this complete angle will make any relationship or not? Tell me. Yes, sir. और इसको मैं नाम देता हूँ EF. क्या नाम दे दिया मैंने? EF. EF. तो एक बात बताओ, येलो डर्टी फेलो की बात हम करते हैं, तो 105 plus angle AEF makes what? Is it making 180? Yes, sir. Yes, sir. So angle AEF कितना हो जाएगा guys यहाँ पे? 180 minus 105. So angle AEF कितना हो जाएगा बताओ? 75. हाँ? 75. 75 डिग्री हो जाएगा. कोई प्रॉब्लम इसमें? कोई प्रॉब्लम इसमें? No, sir. अच्छी बात है. अब ये कंप्लीट 75 है सना. अब ये कंप्लीट Yes, sir. 75 है. So this angle will be how much? 75 minus 25. Yes. So can we say here 50, angle 50, CEF is 50. equals to 50 degree? Yes, sir. Anika, do you agree with this? Yes, sir. अब बताओ, मेरे ग्रीन हरे भरे बच्चे जो हैं, ये ग्रीन वाले जो हैं, कुछ रिलेशन बनाएंगे क्या पैरेलल और
ट्रांसवर्सल में? चेक करो। Yes, sir. So 25 will also be equal to x. इक्वल टू क्यों? दिस x makes ग्रीन के साथ कुछ 20. So हाँ? 180. X plus green is equal to 180. Like basically x plus 50 is equal to 180. Good, perfect. So x will become here how much? 130. 130 degree. Good, perfect. So do you understand how to solve? Yes, sir. Got it. Understand, Anika? Yeah, I do understand. तो अगर नोट करना है तो जल्दी से नोट कर लो, मैं तो टाइम आप दे रहा हूँ। PDF शेयर कर देना। Yes, I will share the PDF to you. Don't worry. कल का भी करना है, आज का भी करना है। कल नहीं परसों दिया था शायद, जो भी है। Explain this part again, how we found x. I didn't really. Oh, can you see green CD and EF has a parallel line? Yes, sir. अच्छा, अब ये दोनों पैरेलल लाइन आपको जब दिख रहे हैं तो ये ट्रांसवर्सल हो गया CE। हाँ सर। जरा सा अपना सिर लेफ्ट साइड झुकाओ और देखो तो ये वाला एक्स और ये वाला ग्रीन में कुछ रिलेशन बन रहा है क्या? लेफ्ट साइड सिर झुका के देखो क्या बन रहा है। 180. दे आर इंटीरियर और सेम साइड हैं। 250. या तो ये 50 निकल गया था ना हमारे पास पहले, देखो सर 75 minus 20. 25। हाँ 25. तो ये 50 पहले से निकल चुका था, तो हमने ये 50 लिखा, तो ये क्या हो गया, एक्स की वैल्यू क्या हो गई? 130. ये क्लियर है? Yes sir, it's clear. ओके, सो ऐसे ही सॉल्व करते हैं। ठीक है गाइस, Yes sir. चलें? Yes. तो मैं आप लोगों को PDF शेयर कर दूंगा और वीडियोस भी कल तक अपलोड हो जाएंगी। आप लोग 7C में जितना हो सके आप उतना बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, Yes sir. बस जितना हो सके, मतलब ये नहीं कि आके कहना है सर एक क्वेश्चन बना, एक क्वेश्चन नहीं बनेगा। इट विल टेक कंप्लीट करने की कोशिश करो। ठीक है? Okay, sir. यस, ओके, चलो And sir, ठीक, what about the questions that I sent you? वो मैं आपको करा दूंगा, डोंट वरी। वो आपको कल कब तक करना है आपको? 5 PM तक। Yes. चलो आज शाम में मैं वो करा दूंगा आपको। ठीक है? Yes, Yes sir. sir, bye. हाँ, ओके, बाय, टेक केयर। ओके।